Hello friends, in this lecture we are studying about the new syllabus mathematics paper 1. Name of the topic is mathematics. In the old course the mathematics was for 8 marks. In the present course we are having 8 marks mathematics. Now its weightage for board marks or distribution is of the 3 plus 3 plus 2, or it may be 2 plus 2 plus 4. Okay, according to board we are having 3 questions. One is 4 marks question and 2 are 2 marks questions. So this is distribution according to board. Now we will study for board exam. Mathematical logic mainly includes the following points. Which are the following points we can see here? Let's study statement. 2 नंबर पे है लॉजिकल कनेक्टिव्स, 3 नंबर पे है क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, then statement pattern and logical equivalences, then algebra of statement, and finally is Venn diagrams. Now we'll study all these units in this lesson. Now we'll go for first statement. Now what is statement? आप देखेंगे बोर्ड पे. A statement is a declarative sentence which is either true or false, but not both simultaneously. Statements are denoted by letters P, Q, R, S. अभी जितने सारे sentences होते हैं we cannot call it as statement. Those sentences are statements which are either true or false. समझो मैंने बोला कि मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. समझो मैंने यही बोल दिया कि मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, अरे आपको समझ में आएगा अरे नहीं गलत बोल रहे हैं. Whenever we are getting it is either true or false, in that case that sentence is said to be statement, isn't it? The true is a prime number. आपको पता है true is prime number? पता नहीं है, पता नहीं है तो आप बोलेंगे false है, पता है तो आप बोलेंगे true है. So it is statement. So for we have in some examples here, 2 is a prime number, every rectangle is a square, the sun rises in the west. So all these examples, 4 examples are given, you can study. So these are the simple statements and we can call it as simple statements. Okay, so the letters are P, Q, R, S, etc. These are the letters used to denote these statements. Okay, तो हम लोग इसके बाद में आपको ये स्टेटमेंट में ये स्लाइड में समझ में आया कि स्टेटमेंट किसी को कहना है. कोई भी सेंटेंस दिया उसको स्टेटमेंट समझो. x इज रियल नंबर, तो आपको पता है कि x क्या है? नहीं है. समझो x मैंने 2 दिया तो 2 इज रियल नंबर, x का वैल्यू -√2 दिया तो ये रियल नंबर नहीं हो सकता. जैसे कि वी कैन कॉल इट एज ओपन सेंटेंसेस. अब हम लोग आगे देखेंगे. नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट. द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट. क्या दिया है? ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू? द स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इट इज डिनोटेड बाय T, and if the statement is false then truth value is denoted by F. Okay, so we observe some statements. The sun rises in the east, the square of real number is negative. Okay, देखो ये सब statements है. Sum of two odd numbers is odd. Sum of opposite angles of cyclic quadrilateral cyclic rectangle is 180 degree. Here the truth values of this statement 1 and 4 is T and the all the rest are 2F. Now तो ट्रूथ वैल्यू के बारे में अभी इस ये पूरा जो है इसमें क्या ध्यान में रखना है? जब स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसका वैल्यू आपको T से डिनोट करना है, जब स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसको F से डिनोट करना है. दिस इज टू बी रिमेंबर इन दिस स्लाइड. ओके, विल गो फॉर नेक्स्ट. नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है. वी कैन ऑब्जर्व दिस फॉलोइंग सेंटेंसेस. मे गॉड ब्लेस यू. व्हाई यू आर सो अनहैप्पी. Third is remember me when we are parted. Don't ever touch my phone. Okay, or one more, I hate you. Okay, these are the statements. Where do you want to go today? Now these are the 6. Now these 6 are given sentences, but in these sentences we are not getting any whether it is true or false. Means the statements are not declarative. That's why these are not statements. ये statements नहीं है क्योंकि पहला जो exclamatory है, second है interrogative that is question है, third is just nothing is getting in third statement.
फोर्थ इज ऐसा, किसने किसी को कहा है डोंट टच माय फोन, किसने किसी को कहा है पता नहीं है, सो वी कैन नॉट से कि ये स्टेटमेंट है। आई हेट यू, किसका हेट है, कौन है, कुछ पता नहीं है, सो इट इज नॉट स्टेटमेंट। ओके, सो इसीलिए स्टेटमेंट वो होता है कि जहां पे आपको समझ में आता है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, विल गो अहेड। देखो ओपन सेंटेंस किसको कहेंगे? ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू वेरीज अकॉर्डिंगली some conditions which are not stated in the sentences. Okay, now क्या ऑब्जर्व करना है? आप देख सकते हैं x plus 4 is 8, क्या दिया है यहाँ पे? x plus 4 is 8। ये स्टेटमेंट जो है, ये सेंटेंस जो है, x का वैल्यू मैंने 4 लिया तो 4 plus 4 कितना हो जाएगा? 8। ये ट्रू हो जाएगा। समझो x का वैल्यू मैंने अदर देन 2 लिया, 4 लिया तो समझो 2 लिया तो 2 plus 4 कितना? 8 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, 6 होता है। सो x का वैल्यू जो है उसके ऊपर उसका ट्रूथनेस डिपेंड है। इन केस जब ट्रूथनेस जो है कोई समटाइम्स फॉर दैट वैल्यू इट इज ट्रू, समटाइम्स फॉर दैट वैल्यू इट इज एफ, देन दैट इज सेड टू बी ओपन सेंटेंस। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ओपन सेंटेंस कहेंगे। चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी। कुछ आपको लगेगा कि टेस्टी है, मुझे नहीं लगेगा कि वो टेस्टी है, तो अकॉर्डिंगली पर्सन टू पर्सन वो उसका ट्रूथनेस बदलता है, इसीलिए हम लोग इसको ओपन सेंटेंसेस कहेंगे। सो ओपन सेंटेंस और स्टेटमेंट में फर्क समझ में आया? x plus 4, समझो 4 is equal to 8 देते हैं तो ये स्टेटमेंट है लेकिन गलत है, क्योंकि 4 का वैल्यू 8 नहीं हो सकता। 4 is less than 8 है, ट्रू है। 4 is greater than 8 है, फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन x plus 4 is equal to 8 ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये ओपन सेंटेंस हो। ओके, सो वी विल हैव नेक्स्ट मींस आपका पीछे का जो स्लाइड था उसमें क्या ध्यान में रखना है आपको? ओपन सेंटेंसेस में जहां पे अकॉर्डिंग टू पर्सन उसका ट्रूथ वैल्यू जो है बदलता है, इसलिए क्या कहेंगे हम उसको? ओपन सेंटेंसेस कहेंगे। नाउ वी हैविंग एक्टिविटी दैट इज डिपेंड ऑन डिस्कशन व्हाट वी सी इन प्रीवियस स्लाइड्स। नाउ इन दिस एक्टिविटी वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट ऑल दिस एक्टिविटीज। नाउ यहाँ पे पहला दिया है सीरियल नंबर, दूसरा सेंटेंस दिया है, तीसरा दिया वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स वो दिया है, इफ नो तो रीजन क्या है वो बताना है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है आपको व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, समझो वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू f है, t है। ओके, तो पहला क्या दिया है? √2 इज अ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट है क्या? है। क्यों? √9 इज नॉट रैशनल, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इस रीजन क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये स्टेटमेंट है और फॉल्स है। इसे फॉल्स किस लिए है? अंडर कोई भी निगेटिव नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इसीलिए वो फॉल्स स्टेटमेंट है। कैन यू स्पीक इन फ्रेंच? व्हाट इज सेकंड इज कैन यू स्पीक इन फ्रेंच? ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव, वहां पे रीजन लिखा है इंट्रोगेटिव। सो जो स्टेटमेंट नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू का सवाल ही नहीं आता। सो वी हैव डैश हियर। ओके, लास्ट में हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? डैश। सो टोक्यो इन गुजरात, टोक्यो कहाँ पे है? गुजरात में। ये सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है। यस, ये समझ में आता है कि टोक्यो वो तो इंडिया में नहीं है तो गुजरात में कहां से आएगा? जब ये समझ में आता तो वो स्टेटमेंट नहीं है। ओके, सो वी राइट इट्स ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। स्टेटमेंट है लेकिन ट्रूथ वैल्यू क्या है? टोक्यो इज इन गुजरात, ये स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू f है। ओ फैंटास्टिक, लेट्स गो। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। प्लीज ओपन द डोर क्विकली, किसने किसको कहा है? समझ में नहीं आता, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, सो इट इज इंपरेटिव। किसी ने किसी को तो भी कहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए वो स्टेटमेंट नहीं है, ट्रूथ वैल्यू तो उसका नहीं होगा। सो 6 स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। समझो 4 लिया, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ जाता है, 16 इज इवन। 2 लिया, 2 का स्क्वायर है, 2 इज इवन। 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ जाता है, 4 इज इवन। सो स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज t। देखो उसके बाद में है x plus 5 इज लेस देन 14। आपको x का वैल्यू मैंने 4 लिया तो करेक्ट आएगा, x का वैल्यू 15 लिया तो गलत आएगा, इसीलिए दो x plus 5 इज लेस देन 14 ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है, तो ट्रूथ वैल्यू का सवाल ही नहीं है। ओके, विल गो फॉर नेक्स्ट। 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आपको पता है कि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? वो स्टेटमेंट है और ये फॉल्स, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज एक्टिविटीज। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट लॉजिकली कनेक्टिव्स।
Now, what are logical connectives that we should know in proper way? In logical connectives is also called as logical operators. देखिए आप यहाँ पे रीड कीजिए. We have been given in proper way sentential connectives or sentential operators. It is symbol the word used to connect two or more than two statements. We can call it as grammatically way. It should be valid. Now, which are the logical connectives in mathematical logic? That is very important. The word or the group of words such as and, or, if, then, if and only. These are the logical connectives. Not is the operator. It's not logical connectives. To join two or more than two simple statements, we'll use the connectives. We can call it as connectives or logical connectives. Not is logical operator for a single statement. It changes the truth value from T to F, F to T. That you should remember here. Now, ये स्लाइड जो है पूरा, इसमें क्या ध्यान में रखना है? We'll summarize it. कुछ नहीं है. How many logical connectives are there? 4 है. कौन सा है? पहला है and, दूसरा है और, तीसरा है if then, fourth one is if and only if, and fifth is not, which is logical operator. So we having only 4 logical connectives. ये स्लाइड में समझ में है आपको? क्या ध्यान में रखना है? Only 4 logical connectives are there. कौन से है? And, or, if, then, if and only if. Okay. So what are their mathematical names? What are their symbols? So we are looking in details. हर एक के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसका देखेंगे क्या होता है. Okay. So we'll go for first. कंपाउंड स्टेटमेंट. अभी कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहना है? कंपाउंड स्टेटमेंट. नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट, अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ statement which is formed by combining two or more than two simple statements with the help of logical connectives. With the help of logical connectives, the above 4 compound statements, the above 4 sentences are compound statements. Now we will go through in that. तो ये स्लाइड जो है कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहना है? समझो, मैंने दिया 2 + 2 इज इवन नंबर एंड 4 इज ऑड नंबर. तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है. ओके. सो यहाँ पे कुछ मैथमेटिक हमने अभी देखा इसके पहले स्लाइड में. वी हैविंग 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स. देखो पहले एंड है. एंड का ए जैसे है कि इससे स्टार्ट होता है ऐसा, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है एंड. उसके बाद में और. ओके. देन नॉट के लिए ऐसा है, उसके लिए इफ देन. ओके. इफ देन के लिए इफ एंड ओनली इफ, इसके लिए डबल आ रहा है. तो मैथमेटिकल करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट मैथमेटिकल नेम क्या है? जैसे कि एंड है, एंड का हम कंजंक्शन कहेंगे. क्या कहेंगे? कंजंक्शन. और को डिजंक्शन कहेंगे. उसके बाद में नॉट, उसको नेगेशन कहेंगे. उसके बाद में जो इफ देन है उसको हम क्या कहेंगे? कंडीशनल और इम्प्लीकेशन. जब डबल है तो उसको क्या कहेंगे हम? बाय कंडीशनल. ध्यान में देना है, ये स्लाइड में आपको इतना ध्यान रखना है. ये और है, ये एंड है, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ. नॉट के लिए तो समझ में आता, वो इतना ही ध्यान में रखना है इस स्लाइड में. और देयर मैथमेटिकल नेम्स आर कंजंक्शन, डिजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल. ओके. सो वी विल गो इन डिटेल्स. देखो अभी कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन, हाउ टू ऑब्टेन कंजंक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 सिंपल स्टेटमेंट. Now, if P and Q are any simple statements, the word and, which is used to connect the 2 statements, we can call it as conjunction of 2 statements. Now, here symbolic form is given like this. P पहले P and Q, read as P and Q. समझो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है. पहले लिया है P, √2 is a rational number. Q, 4 + 3i is complex number. उसका हमको कंजंक्शन ऑब्टेन करना है. इसका मतलब एंड से दोनों कनेक्ट करना है, तो विल कनेक्ट इन दिस वे. पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे P and Q. दूसरा आएगा जिसको हम वर्ड से एक्सप्रेस करेंगे, उसको कहते हैं वर्बल फॉर्म. √2 इज रैशनल नंबर एंड 4 + 3i इज कॉम्प्लेक्स नंबर. 4 + 3i इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ये हो जाएगा आपका वर्बल फॉर्म. ओके. सो विल गो, इस ट्रूथ टेबल क्या है उसमें हम देखेंगे. नाउ ट्रूथ टेबल क्या है देखेंगे. ओके. ट्रूथ टेबल है, देखो पहले लिया P. तो ट्रूथ टेबल क्या होता है पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड. 2 लोग बात कर रहे हैं, दोनों ट्रू बात कर सकते हैं. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू और दोनों भी फॉल्स. देखिए
टी है, दो स्टेटमेंट है, पहले के लिए दोनों ट्रू हो सकते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी पहला ट्रू दूसरा है, तीसरा पॉसिबिलिटी पहला फॉल्स दूसरा ट्रू और लास्ट का पॉसिबिलिटी दोनों एफ। ओके, नाउ जब कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है यूजिंग एंड, तो उसको दोनों का एक ही ध्यान में रखना है, जब दोनों भी ट्रू है, दोनों भी ट्रू है तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। मीन ये टेबल में दिया है, टी के सामने टी दिया है, मीन हाउ वी कैन समराइज दिस टेबल, टी के सामने टी आएगा, अदर कॉम्बिनेशन के लिए एफ आएगा, इतना इसमें ध्यान में रखना है। विल गो अहेड नाउ disjunction. P and Q are any two simple statements connected by word or. The resulting compound statement is P or Q. Is called as disjunction. Is called as disjunction, which is written in the symbolic form P or Q. यहाँ पे दिया है P or Q. Okay. Note the word or is used in English language in two distinct senses. One is exclusive and other is inclusive. Okay. ये दोनों मेथड से यूज कर सकते हैं और के लिए। सो विल हैव इट्स ट्रूथ टेबल। अभी एक एग्जांपल देखेंगे इसका। ट्रूथ टेबल देखो क्या है ट्रूथ टेबल, एग्जैक्टली अपोजिट टू एंड। देखो पहले P एंड Q दिया, यहाँ पे P में टी एफ दिया है, Q में क्या दिया है, Q में दिया है टी एफ दिया है, राइट, दिखाई दे रहा है आपको सबको। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है P और Q, तो P और Q में एंड में क्या था, दोनों T है तो उसके सामने T था, बाकी सब F थे, और में ये ध्यान में रखना है दोनों F है तो उसके सामने F आएगा, इन अदर केसेस इट इज T। ओके, इतना ही समराइज करता हूं। ओके, आगे का जो है वो है निगेशन। निगेशन तो सिंपल है, हाउ टू ऑब्टेन। मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, निगेशन, मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, 2 is less than 3, so its negation is 2 is greater than 3. So in this way, और सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है 2 इज इवन नंबर, उसका निगेशन 2 इज नॉट इवन नंबर। तो P का निगेशन P आएगा जब स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसका निगेशन का ट्रूथ वैल्यू F आएगा, जब स्टेटमेंट F है उसका निगेशन का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, T आएगा, ये ध्यान में रखना है। विल गो अहेड। कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय इफ, देन वी कैन कॉल इट एज कंडीशनल स्टेटमेंट। वी कैन राइट सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, P implies Q, read as P implies Q। देखो यहाँ पे दिया है P, there is a rain, Q, the match will be cancelled। दोनों का कंडीशन कैसे फाइंड आउट किया, if there is a rain then match will be cancelled। देखिए आप यहाँ पे लिखा है। सेकेंड, R is a rational number, P is a statement, R is a rational number, Q is a statement, R is a real number। उसका कंडीशन क्या होगा, if R is rational number then R is a real number, R is a real number। ये आपका क्या होगा, कंडीशनल का स्टेटमेंट होगा। इन दिस वी विल सी व्हाट इज ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल। इसका ट्रूथ टेबल, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि दो स्टेटमेंट है जब कनेक्ट हो गए तो उसका दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड दोनों फॉल्स। तो अभी देखेंगे कंडीशनल में क्या है, कैसे ट्रूथ टेबल होता है। ओके, कंडीशनल का ट्रूथ टेबल है, देखो एज यूजुअल P का दिया है TTFF, Q का क्या दिया है TFTF दिया है, उसके बाद में P कंडीशन Q में। अब ध्यान देखिए एंड में क्या दिया था, दोनों T है तो उसके सामने T था, और में क्या है, दोनों F है तो उसके सामने F था। अभी कंडीशन में ये ध्यान में रखना है, देखो P कंडीशन Q में जब पहला T है दूसरा F है तो उसके सामने F है, इन अदर केसेस इट इज ऑलवेज T। व्हाट यू शुड रिमेंबर इन दिस टोटल चार्ट, यू शुड रिमेंबर कि पहला T दूसरा F उसके सामने F, बाकी का क्या होगा T होगा, ये ध्यान में रखना है। ओके श्योर, विल गो अहेड। बाय कंडीशन लास्ट वाला, बाय कंडीशन जो है, देखो बाय कंडीशन में क्या दिया है, डबल इंप्लीकेशन कहते हैं हम लोग, डबल इंप्लीकेशन, दोनों साइड एरो है। ओके, सो इफ टू स्टेटमेंट्स P and Q are connected by the group of words if and only if, or we can write if, then the resulting compound statement P if and only if Q, symbolic form P if and only if Q, दोनों साइड एरो है। ओके, एग्जांपल, मिल्क इज व्हाइट, Q मिल्क, द स्काई इज ब्लू। P इज मिल्क इज व्हाइट, Q इज स्काई इज ब्लू। हम लोगों को क्या करना है, इसका बाय कंडीशन निकालना है। सो वी कैन से मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज ब्लू। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन है, 3 is less than 5, Q 4√2 is a rational number,
उसका कंडीशन क्या हो जाएगा? 3 is less than 5 if and only if 4√2 is rational number, irrational number, ये हो जाएगा। ओके, लास्ट इसमें टेबल इंपॉर्टेंट है, वो टेबल पे जाएंगे। हमने देखो एंड में क्या दिया था, दोनों टी है तो उसके सामने टी, और में क्या दिया था, दोनों एफ है तो उसके सामने एफ। तीसरा कंडीशन में क्या दिया था, टी एफ है तो उसके सामने एफ। और इसमें ध्यान में रखेंगे दोनों सेम हैं, देखो पहला टी टी है उसके सामने टी आएगा, एफ एफ है लास्ट में देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, लास्ट में दोनों एफ है तो उसके सामने टी आएगा। मींस ये टेबल के ध्यान में क्या रखना है, जब दोनों सेम हैं मींस टी है और एफ एफ है तो रिजल्टेंट उसका टी आ जाता है। फॉर अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एक टू है दूसरा एफ है तो उसके सामने क्या आएगा, एफ आएगा। ये टू टेबल में ध्यान में रखना है। ओके, आया समझ में? विल मूव फॉर नेक्स्ट, दैट इज concept quantifiers and quantified statement. Okay, just I am going to explain within short. Two types of quantifiers are here. What are quantifiers? The quantifiers are the words or phrases which are used to quantify the statements. Means जब open sentence है कोई तो भी उसका मीनिंग नहीं आ रहा, कुछ उसमें हम लोग वर्ड यूज करके वो स्टेटमेंट हम लोग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका ट्रूथ वैल्यू टी होता है, समटाइम्स इट इज एफ। उसमें चेंज करना है। दो टाइप्स के क्वांटिफायर है, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को फॉर ऑल बोलते हैं और एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। नाउ दीज आर द गिवन सिंबल्स हियर। ओके, फॉर ऑल के लिए सिंबल क्या है, दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए सिंबल क्या है आप देख सकते हैं। ओके, विल मूव द रेस्ट पार्ट इन अदर वीडियो। नाउ we'll stop here today.